نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ الہ کھلایا۔ اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے علماء دین و اراکین جلسہ مالنچا اور اس کے چاروں اطراف و اکناف سے آئے ہوئے بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، عزیز بچوں اور پردہ کے ایک سائیڈ میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، محترم سامعین، سب سے پہلے میری گزارش تو یہ ہے کہ پنڈال کے ایک سائیڈ میں جو میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کے پنڈال سے بات کرنے کی آواز آ رہی ہے تو براہ کرم آپ لوگ بات نہ کریں آپس میں، اور بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ، پرماحول کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ میری باتوں کو سنیں۔ لیکن ان کو بولنا اور نہ بولنا بیکار ہے، کیونکہ عورتوں کی ایک بہت بڑی بیماری بولنا ہوتا ہے، ان کی ایک بہت بڑی بیماری ہوتی ہے بولنا۔ وہ آپس میں اگر بیٹھی رہیں گی تو خاموش نہیں رہ سکتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ تو اپنے ہسبینڈ کی بات نہیں مانتی، میں تو خیر مولوی صاحب ہوں جو بہت دور سے آیا ہوں، میری بات تھوڑی نہ مانیں گی۔
اس کے باوجود بھی آپ سے یہ اعتماد ہے آپ لوگوں کے اوپر کہ آپ لوگ میری باتوں کو سنیں گے اور توجہ کے ساتھ آپ لوگ میری باتوں کو سنیں گے۔ اردو سمجھنے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے نا آپ لوگوں کو؟ ماشاءاللہ میں بہت ہی آسان اردو میں آج آپ لوگوں کے سامنے بات کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ جب میں یہاں پر آیا تو کچھ کمیٹی کے نوجوان جو ہیں مجھ سے ملے اور کہا کہ مولانا آپ کو اس کے اوپر بولنا ہے۔ میں سوچ کر آیا تھا کہ کسی اور مضمون کے اوپر، ٹاپک کے اوپر آج آپ لوگوں کے سامنے بات رکھوں گا، لیکن ان لوگوں نے اشارہ کیا کہ نہیں مولانا صاحب آپ کو اس کے اوپر بیان رکھنا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ ان کی بات کو مانتے ہوئے اسی مضمون کے اوپر یا اسی طرف آج میری بات جو ہے یعنی رکھی جائے۔ تو آئیے آج میں جس عنوان کے اوپر بات کروں گا وہ عنوان ہے کہ ہم گناہوں سے کیسے بچیں۔ اس مضمون کے اوپر بولنے کی ضرورت آخر کار کیوں پڑی، اس کی وجہ بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے آپ کے علاقے میں نا مرشد آباد میں ارد گرد ہر روز کہیں نہ کہیں جلسہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہر روز کہیں نہ کہیں جلسہ ہوتا ہے۔ جلسوں کے نام پر آج اس قوم کا پیسہ پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، برا مت مانیے گا۔ جلسوں کے نام پر کروڑوں روپیہ پانی کی طرح آج اس قوم کا برباد کر دیا جاتا ہے، نشٹ کر دیا جاتا ہے، تباہ کر دیا جاتا ہے۔ کیجئے جلسہ، آپ جلسہ کیجئے، اچھی بات ہے۔ قرآن حدیث دور دراز سے علماء کو لائیے، ان کی زبان سے قرآن اور حدیث کی باتیں سنیے، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن افسوس کہاں ہے جانتے؟ افسوس اور ملال تو اس بات پر ہے، یعنی کھیت تو اس بات پر ہے، جلسہ کراتے ہیں ٹھیک ہے، دور دراز سے علماء کرام کو بلاتے ہیں، چلیے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب مولانا ہمارے علاقے میں آئے اور قرآن اور حدیث کی باتیں بتائے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ان پر عمل کریں، ہم ان کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، ہم ان کو فالو کر کے اپنی زندگی گزاریں، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جلسہ کرانے کے باوجود بھی آج ہمارے اندر اور آپ کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔ ہم اور آپ گناہوں سے نہیں بچ پا رہے ہیں، کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں صاحب ہم گناہوں سے آخر کار کیوں نہیں بچ پا رہے ہیں؟ جلسہ تو سن رہے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں تو سن رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم گناہ سے کیوں نہیں بچ پا رہے ہیں؟ اب دیکھیے آپ کے اس گاؤں کی مثال میں دے کر جا رہا ہوں، مالنچا ہے نا، مالنچا میں کون سی ایسی برائی ہے جو اس گاؤں کے اندر موجود نہیں ہے؟ اس سے پہلے بھی تو جلسہ ہوا ہے نا اس گاؤں میں، اس سے پہلے بھی جلسہ ہوا ہے، بتائیے کون سی ایسی برائی ہے جس گاؤں کے اندر موجود نہیں ہے؟ دن با دن ہمارے گاؤں کے اندر، سماج کے اندر، معاشرے کے اندر برائیاں بڑھتی جا رہی ہے، غلط کام بڑھتے جا رہے ہیں، پاپ بڑھتے جا رہا ہے، ادھرم بڑھتے جا رہا ہے، اور دن با دن اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی بڑھتی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں کوئی رزلٹ نہیں نکلا، لیکن ہاں میرے سامنے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے آج میں 3 چیزوں کا ذکر کروں گا، میری باتوں کو غور سے سنیے، بڑی قیمتی باتیں آج میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے 3 چیزیں بتا کر جاؤں گا، اور میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں اگر آپ نے فردن ہر کسی سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے میری باتوں کو غور سے سن لیا اور ان 3 چیزوں کو اپنے اندر فٹ کر لیا، بیٹھا لیا، تو یقین مانیے آپ گناہ سے بچ جائیے گا، آپ جو ہے برائی سے بچ جائیے گا، آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے سے بچ جائیے گا۔ لیکن یاد رکھیے اگر آپ ان کو نہیں مانیے گا تو یہ بھی چیلنج ہے کہ قیامت کی صبح تک آپ برائی سے، قیامت کی صبح تک آپ گناہ سے، قیامت کی صبح تک آپ ادھرم سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ آئیے ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے ان تینوں چیز کے اوپر میں روشنی ڈالنے کی جا رہا ہوں۔ پہلی چیز، گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں نا سب؟ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں نا؟ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کا ڈر۔
पहली चीज है अल्लाह का डर। जानते हैं जब इंसान के अंदर ना, आप हर रात जलसा सुनिए, मौलवी तनवीर क्यों हर रोज अगर जर्जिस को भी बुला कर लाएंगे ना, अरे जर्जिस क्यों, अगर काबा के जो इमाम है ना उनको भी दावत देकर लाइएगा, उनकी भी बात सुनिएगा, तब भी आप गुनाह से नहीं बच सकते हैं। कब तक? जब तक ये चीज आपके अंदर पैदा नहीं हो जाएगी। वो चीज क्या है? अल्लाह का डर। अल्लाह का डर आप अपने अंदर पैदा कीजिए, ये पहली चीज है। क्यों? आइए मैं आपको बताता हूं। ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बार बार बयान फरमाता है, ऐ मुर्शिदाबाद के लोगों, अगर तुम बुराई से बचना चाहते हो, गुनाहों से बचना चाहते हो, इस दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी कामयाबी पाना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम अपने अंदर तक़वा पैदा कर लो। सबसे पहले तुम अपने अंदर यानी खौफ इलाही को पैदा कर लो, उस अल्लाह का डर तुम अपने अंदर पैदा कर लो। इसीलिए जब आप कुरान उठाएंगे, ये अलग मसला है कि आज हमें हर चीज करने के लिए टाइम मिल जाता है, हमें दिन में फेसबुक और व्हाट्सएप चलाने के लिए टाइम मिल जाता है, चार न्यूज़ पेपर पढ़ने के लिए टाइम मिल जाता है, बादाम गाना सुनने के लिए भी टाइम मिल जाता है, लेकिन हमें कुरान पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता, हमें कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं होती। अरे मुसलमानों, कभी कुरान उठा कर पढ़ो। अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान करीम के अंदर एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, तीन जगह नहीं, बल्कि बार बार अल्लाह तबारक व तआला इसी चीज की पैगाम हमें और आपको दे रहा है, इसी चीज का मैसेज हमें और आपको दे रहा है कि ऐ मेरे बंदो, तुम अपने अंदर तकवा पैदा कर लो। ऐ मेरे बंदो, तुम अपने अंदर मेरा डर और मेरा खौफ तुम अपने अंदर पैदा कर लो। बार बार, एक जगह, दो जगह, तीन जगह नहीं, कुरान करीम के अंदर सैकड़ों मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर सैकड़ों जगह पर बयान फरमाता है कि तुम अपने अंदर डर पैदा कर लो, मेरा खौफ तुम अपने अंदर मेरा पैदा कर लो। क्यों? अल्लाह जानता है कि जब बंदा के अंदर, इंसान के अंदर, बशर के अंदर जब मेरा डर, मेरा खौफ, तकवा, खशियत जब उनके अंदर पैदा हो जाएंगे, तो वो दुनिया के अंदर मेरी नाफरमानी करने से बच जाएगा और वो गुनाहों से बच जाएगा। जरा देखिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान में क्या फरमाता है। पहले देखिए मोमिनों से कहा जा रहा है, किनसे? उन लोगों से कहा जा रहा है जो अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर ईमान रखते हैं, अधर्मियों से नहीं, बल्कि सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों से कह रहा है। मोमिन किसे कहते हैं? मोमिन की डिफिनेशन क्या है? अल ईमान अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर व तुमिना बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला। मोमिन की डिफिनेशन है। मोमिन कौन है? जो अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं। उन लोगों से कहा जा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, ऐ लोगों जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर, नबी पर, उनके किताबों पर, फरिश्तों पर जो ईमान लाए, ऐ मोमिनो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ईमान लाने के बाद तुम्हारा सबसे पहला काम यह है कि तुम अपने अंदर तकवा पैदा कर लो, तुम अपने अंदर खौफ पैदा कर लो, तुम अपने अंदर इस रब का डर तुम अपने अंदर पैदा कर लो। मोमिनों से कहा जा रहा है। और आगे आइए, उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर दूसरी जगह पर, दूसरे मकाम पर बयान फरमाता है, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, ऐ लोगों, यहाँ पर अल्लाह ने तमाम के तमाम लोगों को शामिल कर लिया, जमे इंसानों को शामिल कर लिया, आसमां के नीचे, इस धरती के ऊपर, इस जमीन के ऊपर जितने भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के मानने वाले हों, चाहे वो हिंदू हो, चाहे यहूदी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जैनी हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, वो कोई भी हो,
اللہ نے یہاں پر سب سے کہہ رہا ہے، اللہ یہاں پر تمام کے تمام لوگوں کو یہ میسج دے رہا ہے، یہ پیغام دے رہا ہے، اے میرے بندو تم اپنے اندر ڈر پیدا کر لو، یعنی اس رب سے ڈرو، اس خالق سے ڈرو، اس مالک سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا اور جس نے تم کو پیدا کرنے کے بعد اس زمین کے اندر بھیجا، جس نے تم کو پیدا کرنے کے بعد اس دنیا کے اندر بھیجا، اس دنیا کے اندر بھیجا، یعنی تم اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے رازق سے تم ڈرتے رہو۔ دو چیز ہو گئی۔ اللہ کہتا ہے اور بھی بہت ساری جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اپنے اندر ڈر پیدا کر لو، تم اپنے اندر میرا خوف پیدا کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کا ڈر تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جانتے ہیں اسی چیز کو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ، سب پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی چیز کو بار بار حدیث کے اندر، اللہ کے نبی بھی بار بار اپنی امت کو اس چیز کا پیغام دے رہے ہیں، اسی چیز کا میسج اور اسی چیز کا سندیش اللہ کے پیارے رسول ہمیں اور آپ کو بھی دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی بھی جانتے ہیں کہ جب میری امت کے اندر، جب میری امت کے دل کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی، جب اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی دہشت جب پیدا ہو جائیں گے تو دنیا کے اندر برائی سے بچ جائے گا، دنیا کے اندر گناہوں سے بچ جائے گا۔ اللہ کے نبی بھی فرماتے، کیا فرماتے ہیں؟ ذرا سنیے حدیث کو، اتق اللہ حیث ما کنت۔ اس کا معنی جانتے ہیں؟ آئیے اس کا معنی بھی سن لیتے ہیں۔ اے لوگو، اے مرشد آباد کے لوگو، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان فرماتے ہیں کہ میری امت کے لوگوں، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اتق اللہ حیث ما کنت، تم اللہ سے ڈرو جہاں بھی رہو، حیث ما کنت، تم جہاں بھی رہو۔ اے لوگو تم جہاں بھی رہو، جس حال میں بھی رہو، تم جہاں بھی رہو، جس حال میں رہو، جس پرستتی میں رہو، جس سچویشن میں رہو، اگر ڈرو تو بس اللہ سے ڈرتے رہا کرو، بس اللہ سے ڈرو اور کسی اور سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، اگر تمہاری گردن پر کوئی تلوار رکھ دے، سنو اس بات کو، تم اس حالات میں ہو، اس سچویشن میں ہو، اس پرستتی میں ہو کہ تمہاری گردن میں تلوار رکھ دی گئی ہے، تمہاری گردن میں تلوار رکھ دی گئی ہے اور تم سے کہا جا رہا ہے کہ جے شری رام کا نعرہ لگا۔ ابھی تو ٹرین چل رہا ہے نا جے شری رام کا نعرہ لگانے کا، ٹرین چل رہا ہے۔ سنو، انشاءاللہ آج ان کو بھی جواب دے کر جاؤں گا، ان کی کتابوں سے آج ان کو بھی جواب دوں گا۔ سنو، تمہاری گردن پر تلوار رکھ دی گئی ہے، تم سے کہا جا رہا ہے تمہارے ایمان کو فروخت کرنی، تمہارے ایمان کو خریدنے کی بات کہی جا رہی ہے، تم سے کہا جا رہا ہے کہ جے شری رام کا نعرہ لگاؤ، اگر جے شری رام کا نعرہ نہیں لگاؤ گے تو تمہاری گردن کاٹ دوں گا۔ یا پھر ایسی بھی حالات آ گئی، یہ بھی سچویشن پیدا ہو گئے کہ بھارت کے اندر یہ کہا جا رہا ہے اگر کوئی بھی مسلمان اگر اللہ کو مانے گا تو اس کی گردن مار دوں گا، اگر کوئی بھی مسلمان جب تک وہ ہندو نہیں بن جائے گا اس کی گردن مار دوں گا۔ حالات پیدا ہو رہی ہے۔ یا یہ بھی دیکھو کہ ایک جھنڈ، ایک بھیڑ تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے، بھگوا کپڑا پہن کر، یہ تو گنڈوں کا لباس بن چکا ہے، بھگوا کپڑا پہن کر تمہارے اوپر وار کرنے کے لیے، تمہیں مارنے کے لیے، تمہیں قتل کرنے کے لیے، تمہاری موب لنچنگ کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ اس حال میں بھی اگر تم ڈرو تو بس اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا، اے میری امت کے لوگوں، اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں بھی رہو، جس حال میں بھی رہو، جس پرستتی میں رہو، تم ڈرو تو بس اللہ سے ڈرو، بس اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے رہا کرنا، اللہ سے ڈرنا۔ تمہارے دل میں اگر خوف ہو، تمہارے دل میں اگر ڈر ہو، تمہارے دل میں اگر دہشت ہو، صرف اللہ کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہیں۔ کون بیان فرما رہے؟ اللہ نے کہا کہ ڈر پیدا کرو، نبی بھی اسی چیز کا پیغام اور اسی چیز کی تعلیم اور اسی چیز کا درس ہمیں اور آپ کو دے رہے ہیں کہ بس تم اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لو۔ ہاں، ہر معاملے میں جہاں بھی رہو۔ اس کا مطلب جانتے ہیں؟ رات کے 12 بجے، سنتے جائیے، پھر سے میں بولوں، سب کوئی میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ আমার কথা বুঝতে পারছেন তো? আচ্ছা, আলহামদুলিল্লাহ। اب دیکھیے، ہاتھ میں موبائل فون ہے،
हाथ में मोबाइल फोन है। अब रात के 12 बजे, इस आयत को यहां पर भी फिट कर दीजिए, हाथ में मोबाइल फोन है, सबके हाथ में मोबाइल फोन है। अब रात के 12 बजे दिल करता है एक गाना सुन लूं। एक गाना बहुत वायरल हुआ था, आप ही के बंगाल का वो गाना था, पता नहीं आपका बीरभूम का था वो, बादाम बादाम दादा काचा बादाम। ऐसा ट्रेंड चला गाना कि बाप भी डांस कर रहा है, बेटी भी बाप के साथ डांस कर रही है, सब कोई फिदा, बादाम बादाम, जहां भी जाऊं बादाम बादाम। तंग आ चुका था उस गाना को सुनते सुनते। अब दिल कर रहा है कि चलो देख लेता हूं रात के वक्त में। उस हालात में भी अगर डरो, उस हाल में भी अगर डरो, बस अल्लाह से डरो। अब नौजवान है, हाथ में मोबाइल है, दिल करता है चलो एक दो देख ही लेता हूं। वो सब वीडियोस है ना, बिगर कपड़े वाला, क्या बोलते हैं उसको, बिगर कपड़े वाला वीडियो सब देखते हैं आज जवा, सब जानते हैं। नाम लूं तो सब हंसने लगे, सन्नी लियोनी का नाम लूं बच्चा भी हंस पड़े, बच्चा का बाप तो दूर की बात, बच्चा भी हंस पड़े अगर नाम ले लूं तो। अब दिल कर रहा है कि चलो देख लूं, लेकिन अल्लाह के नबी कहते हैं नहीं साहब, डरो तो उस हाल में भी अल्लाह से डरो कि तुम्हारा रात के 12 बजे तन्हाई में, भीड़ में, कहीं भी तुम रहो, अगर गलत कुछ करने का तुम्हें अगर एहसास, अगर ये बात तुम्हारे अंदर में, ये ख्यालात तुम्हारे अंदर में पैदा हो रहे हो, ये एहसास पैदा हो रहे हो कि नहीं साहब मैं ये करूंगा और वो चीज़ गलत है, तो उस चीज़ से बच जाओ। अगर डरो तो उस हाल में भी अल्लाह से डरो। ये कौन तालीम दे रहा है? ये अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम दे रहे हैं। यहाँ पर और एक चीज़ का इजाफा मैं आपके सामने करके चला जाता हूँ, आपको सारी जिंदगी भर आपको काम आएगा। एक चीज़, वो चीज़ क्या जानते हैं? जब इंसान के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है, जब इंसान के अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाता है, तो कितने फायदे होते हैं? आज मैं 2 फायदा गिना रहा हूँ आपको, सुनिए, फिर से बात को सुनिए। जब इंसान के अंदर, इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है, अल्लाह का डर पैदा हो जाता है, तो 2 फायदा होता है। एक फायदा तो ये है कि इंसान बुराई से बच जाता है, इंसान गलत कामों से बच जाता है, इंसान पाप करने से बच जाता है। और दूसरा फायदा ये है कि जब इंसान के अंदर सिर्फ अल्लाह का डर पैदा हो जाता है, तो वह इंसान दुनिया के अंदर निडर हो जाता है। निडर होने का मतलब फिर वो इंसान किसी नेता वोता, मंत्री संतरी वंत्री, इन लोगों से नहीं डरता है। बात समझ में आई? इंसान के अंदर जब अल्लाह का डर पैदा हो जाता है, तो वह इंसान किसी से नहीं डरता, वह इंसान किसी नेता वोता, मंत्री वंत्री से नहीं डरता, वह इंसान किसी भीड़ से नहीं डरता, वह इंसान किसी कुत्तों के झुंड से नहीं डरता, वह इंसान किसी और से नहीं डरता। अगर वह इंसान डरता है, बस अल्लाह से डरता है, वह इंसान निडर हो जाता है। मेरे भाइयों, इसकी एक मिसाल देकर चला जाता हूं। हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह शेख मोहतरम मुझे अच्छी तरह जानते हैं, बहुत दिनों से जान पहचान है शेख की। इस उम्र में, अभी लगभग मेरी उम्र जो है ना, मैं अपने तजर्बे की बात बता रहा हूं आपको कि अभी मेरी उम्र जो है 25 ईयर्स रनिंग है, 25 साल का हूं मैं। इस 25 साल के अंदर 8-9 साल से भारत के अंदर शायद ही कोई ऐसी जगह बची हो जहां पर मेरा प्रोग्राम ना हुआ हो। मुर्शिदाबाद तो आना जाना मेरा लगा रहता है, तो मेरा ननियाल है, ससुराल है मुर्शिदाबाद, आना जाना लगा रहा, मैं तो हर जगह जाता हूँ। बहुत सारी जगहों में जो मेरे सीनियर हैं, जो मेरे शुभचिंतक हैं, मुझसे बोलते हैं कि तनवीर साहब कभी कभार ना नरम लहजे में भी बोला कीजिए, उन लोगों से मत कीजिए। देख रहे ना कि जो भी उन लोगों के खिलाफ बोलते हैं जेल में डाल दिए जाते हैं, उनको मार दिए जाते हैं, इनकाउंटर कर दिए जाते हैं, उनके ऊपर जो है UAPA का केस ठोक दिया जाता है, एक्ट लगा दिया जाता है। तो तनवीर साहब कभी कभार डर लीजिए। मैंने कहा देखिए मैं मुसलमान हूँ, डरता हूँ, बस अल्लाह से डरता हूँ, और मेरा ये ईमान है कि अगर अल्लाह राजी रहे तो दुनिया के अंदर अगर सारे लोग मिल जाए, सारे के सारे लोग अगर जमा हो जाए, सारे के सारे लोग अगर एकत्रित हो जाए, तो मौलवी तनवीर आलम को मारना तो बड़ी दूर की बात, मौलवी तनवीर आलम का एक बाल भी बाका नहीं कर सकता। ये मेरा ईमान है, एक बाल भी बाका नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं डरता हूं, बस अल्लाह से डरता हूं, और मेरा ईमान है कि उस रब के मर्जी के बगैर दरख्त का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये मेरा ईमान और अकीदा है मेरे भाइयों। इसलिए डरिए, बस अल्लाह से डरिए। एक मिसाल देकर जा रहा हूं कि जब इंसान के अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाता है, गुनाह से तो बचेगा इंशाअल्लाह, उसके ताल्लुक से बहुत सारी अहादीस और वाक़यात लाऊंगा, सही वाक़यात, लेकिन इस चीज़ पर भी ज़रा गौर कीजिए कि इंसान निडर हो जाता है। उसके एक जीती जागती मिसाल सब ने देखे होंगे।
वो चीज सब ने देखे होंगे। वो चीज क्या है? कर्नाटका के अंदर एक मुस्कान, एक लड़की, एक प्यारी सी मासूम सी बच्ची जिसका नाम है मुस्कान। क्या हुआ था? पहले तो यह हुआ कि कर्नाटका के अंदर हमारे घराने की औरतें, हमारी बेटियां, हमारी बहनें हिजाब में, हिजाब समझते हैं ना, पर्दे में कॉलेज जाती थी। तो कुछ नफरती चिंटू थे जिनके पेट में दर्द शुरू हो गया। बात को समझिए, फिर मैं साबित करूंगा कि अल्लाह का डर हो तो क्या होता है। कुछ नफरती लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया मेरे भाइयों। उनको बुरा लगा, नहीं हमारी बहन बेटियां ऐसे स्कूल में जाएंगी और मुसलमान घराने की बहन बेटियां पर्दे में जाएंगी। तो उन लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया कि नहीं, बुर्का बैंड हो, कॉलेज में कोई भी लड़की बुर्के के साथ नहीं आ सकती, पर्दे के साथ नहीं आ सकती। ये इख्तलाफ शुरू हुआ, ये एहतजाज शुरू हुआ और उन लोगों ने बहुत कोशिश की। कुछ दिनों की बात है, मैंने इसके ऊपर डिटेल्स में मैंने तकरीर की, आज मैं सिर्फ आपको बता के जा रहा हूं। कुछ दिनों की बात है कि एक लड़की, उसका नाम है मुस्कान, वो भी कर्नाटका के रहने वाली है, उडुपी के, कॉलेज के सामने में अपनी स्कूटी पार्क करती है, अपनी स्कूटी खड़ी करती है और स्कूटी खड़ी करने के बाद वो कॉलेज में इंटर करने के लिए, कॉलेज में दाखिल होने के लिए रास्ते से जा रही है, कॉलेज के सामने से जा रही है। कुछ लोग, नाम भी बता देता हूं, कुछ लोग भगवा कपड़ा पहने हुए, कुछ गुंडे भगवा कपड़ा पहने हुए, उनकी तादाद क्या होंगी? मीडिया वाले, न्यूज वाले बताते हैं कि उनकी तादाद लगभग जो है 50 से लेकर 100 के करीब होंगी उनकी तादाद। 50-100 आदमी थे, एक झुंड बनाकर। देखिए झुंड किसका होता है पता है ना? अगर आप देखो कि 100 आदमी मिलकर किसी को शिकार करने के लिए आ रहा है, 100 आदमी मिलकर किसी पर जुल्म करने के लिए आ रहा है, तो समझ लेना ये मर्दों की फौज नहीं, ये नामर्दों की फौज है। समझ लेना ये कुत्तों की फौज है, कुत्तों की। क्योंकि शेर कभी झुंड बनाकर शिकार नहीं करता है मेरे भाइयों। ये कुत्ते की अलामत है कि कुत्ते जब शिकार करते हैं तो झुंड बनाकर शिकार करते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं, मैं साबित भी कर, ये ना सोचे कि मैं भड़काऊ भाषण दे रहा हूं, नहीं साहब, मैं तो संविधान के दायरे में रहकर बात कर रहा हूं और इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहूंगा करता रहूंगा। कि लोग झुंड बनाकर आए और उनके सामने जोर जोर से नारा लगाना शुरू कर दिया। नारा किनका लगाया? पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का नारा लगाया, श्री राम का नारा लगाया और कहा जय श्री राम का नारा लगाना शुरू कर दिया। उन नामर्दों की फौज ये समझी थी, वो लोग ये समझे थे कि ये एक अकेली लड़की, एक अकेली बच्ची, जब हम नारा लगाएंगे तो हमारा नारा सुनकर डर जाएंगी और कॉलेज से भाग जाएंगी या हिजाब उतार देंगी। वो लोग इस गलत फहमी में पड़े हुए थे। लेकिन मेरे भाइयों, ऐ मुस्कान तेरे जज्बे को सलाम, ऐ मुस्कान तेरी निडरता को सलाम, ऐ मुस्कान तेरी बहादुरी और तेरी शुजाअत को सलाम कि हमारी एक अकेली बहन, वो शेरनी थी, शेरनी, उन कुत्तों के झुंड से नहीं डरा। और मेरे भाइयों, उसने सबके सामने अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर का 3 मर्तबा नारा लगाया और उन लोगों से ये कहा कि सुनो, अगर तुम कुत्तों की तरह झुंड बनाकर अगर शिकार करने आओगे और ये समझोगे, ये सोचोगे कि तुम्हारे नारे से, तुम्हारी तादाद देखकर, तुम्हारा झुंड देखकर हम डर जाएंगे, तो याद रखो हम मुसलमान घराने की बेटी हैं, हम मुसलमान घराने की शहजादी हैं, हम मुसलमान घराने की लाडली हैं, हम मुसलमान घराने की शेरनी है। हम कभी तादाद से नहीं डरते, हम कभी तुम्हारे नारा से नहीं डरते, क्योंकि अगर हम डरते हैं तो बस अल्लाह से डरते हैं। मेरे भाइयों, मुस्कान ने उन लोगों को ये जवाब दे दिया। क्यों जानते हैं? बाद में मुस्कान ने वीडियो रिलीज किया। मुस्कान से कहा गया क्या आपको डर नहीं लगता? क्या आपको डर नहीं लगता कि इतनी सारे लोगों के सामने आपने अल्लाहु अकबर का 3 मर्तबा नारा लगा दिया? तो मुस्कान ने कहा कि मैं मुसलमान घराने की बेटी हूं, अगर मैं डरती हूं बस अल्लाह से डरती हूं, अल्लाह के अलावा मैं किसी से नहीं डरती हूं। ये होता है अल्लाह का डर। ये जीती जागती मिसाल है मेरे भाइयों। लेकिन आइए मैं उन लोगों को भी जवाब देकर चला जाता हूं, उसके बाद मैं दूसरे पॉइंट के ऊपर आ जाऊंगा। ऐ लोगों, अगर मेरी बात मेरे
हिंदू भाइयों के कानों तक पहुंच रही है, या फिर मेरी तकरीर मोबाइल के जरिए से आज रिकॉर्ड भी हो रहे हैं। मैं मोबाइल के जरिए से या आप लोगों के जरिए से मैं उन तमाम के तमाम लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा जो पर्दे के खिलाफ बोल रहे हैं, जो पर्दे के खिलाफ ये एहतजाज कर रहे हैं और ये समझते हैं कि उनके एहतजाज करने से हमारी बेटियां बेपर्दा हो जाएंगी, उनके क्या देने से, उनके नाराबाजी कर देने से हमारी बेटियां कॉलेज में बगैर पर्दे के बगैर हिजाब के जाने लगेंगी। तो उन लोगों से कह देना चाहता हूँ, साहब सुनो, जाओ तुम्हें जो करना है करो, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं ये देश सेकुलर है, ये देश जमहूरी है। इस देश के अंदर अभी भी जमहूरियत बाकी है। ये इस देश के अंदर हिंदू का जितना अधिकार है उतना ही अधिकार मुसलमानों का भी है। इस देश के अंदर जितना अधिकार एक सिख का है उतना ही अधिकार इस देश के अंदर ईसाई का भी है, क्योंकि ये देश सेकुलर है। और ये देश मेरे भाइयों किसी के बाप के कानून से नहीं चलता। ये देश मेरे भाइयों किसी धर्म के मुताबिक नहीं चलता। ये देश चलता है तो संविधान के तौर पर चलता है। ये देश चलता है संविधान से चलता है, और हमारा संविधान हमें ये राइट देता है, हमारा संविधान हमें यह हक देता है, हमारा संविधान हमें यह अधिकार देता है कि हमारी बेटियां अगर हिजाब के साथ अगर कॉलेज में जाना चाहे तो जा सकती है। इस देश का संविधान है कि आप जिस धर्म के मानने वाले हैं, आप जिस रिलीजन के मानने वाले हैं, उस रिलीजन के मुताबिक आप इस देश में जिंदगी गुजार सकते हैं, और इसके अंदर कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता। ना मुसलमानों को इस बात की इजाजत है कि हम उनके कपड़ों पर पाबंदी लगाने के लिए मांग करें, ना हम उनके धर्म में इंटरफियर करें, ना वो हमारे धर्म में इंटरफियर करें। ये किसी को भी हक नहीं है। हर लोग अपने अपने धर्म के मुताबिक, अपने अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजार सकता है। ये इस देश का संविधान हमें ये राइट और सबको ये राइट और अधिकार देता है। हिजाब हमारा फंडामेंटल राइट है मेरे भाइयों, हिजाब हमारा राइट है। इसलिए उन लोगों से मैं कहकर जाना चाहता हूं कि साहब सुनो, तुम्हें जो करना है करो। फिर से सुनो, तुम्हें जो करना है करो। तुम्हें जितनी तादाद के साथ नाराबाजी करने हो करो, हम मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं। और इस बात को भी याद रखो, तुम अपनी बहन बेटियों को जैसे रखना चाहो रखो। ये मेरा मैसेज है, एक मुसलमान होने के नाते और एक बहन के भाई होने के नाते और एक हिंदुस्तानी होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है। इसलिए मैं उन लोगों को ये मैसेज देकर जा रहा हूं कि सुनो, तुम अपनी बहन बेटियों को जैसे रखना चाहते हो रखो, हम मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम अपनी नानी, नाम क्या है? कंगना रनावत, कंगना रनावत, रनावत है कि रंडावत है समझ में नहीं आ रहा है। तो ये कंगना रनावत, अगर तुम अपनी नानी की तरह अगर खुले बदन में अपनी बहन बेटियों को रखना चाहते हो तो रखो, हम मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं। इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने नज़र की हिफाजत करना जानते हैं। हम मुसलमान अपने नज़र की, अपने आंखों की हिफाजत करना जानते हैं। पर इतना कहकर जा रहा हूं कि सुनो, हमारी बेटियां पहले भी हिजाब करती थी, आज भी हिजाब करती है, और क़यामत की सुबह तक हमारी बेटियां हिजाब करते रहेंगी। बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और ये तुम तो बड़ी दूर की बात, तुम्हारे बाप में भी इतना दम नहीं कि हमारी बहन और बेटियों को बेपर्दा कर दो, हमारी बहन और बेटियों को हिजाब कर दो। इस बात को हमेशा याद रखो मेरे भाइयों। दूसरी चीज पर आने से पहले और एक चीज बताकर जाना चाहता हूँ, कौन है ये लोग? ये लोग कौन है? आज आपके वेस्ट बंगाल के अंदर भी इस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं। ये कौन है? जय श्री राम का नारा लगाने वाले, जय श्री राम के नाम पर जय श्री राम का नारा लगाकर झुंड बनाकर आकर मुसलमानों पर जुल्म करने वाले, मुसलमानों पर अत्याचार करने वाले, मुसलमानों की बहन बेटियों को अपमान करने वाले ये गुंडे लोग कौन है? ये भगवाधारी लोग कौन है मेरे भाइयों? क्या हिंदू धर्म के मानने वाले हैं? हम और आप कहते हैं ये लोग हिंदू है। नहीं साहब, नहीं, ये लोग हिंदू धर्म के मानने वाले नहीं है। नहीं, अरे हिंदू धर्म तो बड़ा प्यारा धर्म है। ये लोग हिंदू धर्म के मानने वाले नहीं है। हिंदू धर्म तो बड़ा प्यारा धर्म है मेरे भाइयों। हिंदू धर्म याद रखेगा कभी ये तालीम नहीं देता
के झुंड बनाकर जाओ और किसी मुसलमानों को मार दो, उसकी मॉब लिंचिंग कर दो। हिंदू धर्म यह तालीम नहीं देता मेरे भाइयों कि किसी औरत को अपमान कर दो। हिंदू धर्म यह तालीम नहीं देता कि किसी पर जाकर जुल्म करो। अरे हिंदू धर्म तो बड़ा प्यारा धर्म है, लेकिन ये लोग जो आज हिंदू का ठेकेदार बना हुआ है, असल में ये हिंदू के मानने वाले नहीं, फिर कौन है? क्या जय श्री राम यानी रामचंद्र जी के मानने वाले? नहीं साहब, अगर मेरी बात मेरे हिंदू भाइयों तक पहुंच रही हो तो आप भी सुने। ये लोग जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं, ये लोग श्री रामचंद्र जी के मानने वाले भी नहीं है, ये लोग राम के मानने वाले नहीं है। अरे राम की जिंदगी उठाकर पढ़ो। अरे अगर तुमको कभी तौफीक मिले तो रामायण उठाकर पढ़ो, तुमको पता चल जाएगा। मैं दावे के साथ और ठोक कर और चैलेंज के साथ बताकर जा रहा हूं कि लोग रामचंद्र जी के भी मानने वाले नहीं है, क्योंकि रामचंद्र जी भी जो एक महान इंसान थे मेरे भाइयों, जिसने अधर्म का नाश किया। रामचंद्र जी जिसने लोगों पर जुल्म करने से मना फरमाया। आप रामायण उठाकर पढ़ सकते हैं। फिर ये लोग कौन है? फिर ये लोग कौन है जो आज हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं? ये लोग कौन है जो आज रामचंद्र जी के अखलाक का हनन कर रहे हैं, उनके चरित्र का हनन कर रहे हैं? मेरे भाइयों याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये लोग गोडसे के मानने वाले हैं। गोडसे, गोडसे, ये लोग गोडसे की नाजायज औलाद है। गोडसे कौन? वो गोडसे जो हमारे भारत देश का सबसे पहला आतंकवाद, सबसे पहला दहशतगर्द, सबसे पहला टेररिस्ट, उनके मानने वाले लोग हैं। और इन लोगों का कहना है कि हम इस देश से मुसलमानों को निकाल देंगे, इस देश को हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। आज ये लोग कह रहे हैं मेरे भाइयों, क्योंकि गोडसे भी यही चाहता था। आखिरकार मैं इसके ऊपर और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, बस उन भगवाधारी गुंडू से कहना चाहता हूं कि सुनो, आज तुम औरतों का अपमान करते हो। अरे रामचंद्र जी की बीबी सीता की जिंदगी पर भी नजर डालो कि सीता किस तरह जिंदगी गुजारती थी। अरे रामचंद्र जी का नारा लगाकर औरत को अपमान करने वालों, अरे रामचंद्र जी ने तो रावण का वध इसलिए किया था, रावण को कत्ल इसलिए किया था, रावण पर चढ़ाई इसलिए किया था रामचंद्र जी ने, क्योंकि रावण ने सीता जी का अपमान किया था। और आज तुम उन्हीं का नाम लेकर आज तुम हमारे बहन और बेटियों को अपमान कर रहे हो। उन्हीं का नाम लेकर आज तुम मुसलमान घराने के औरतों को तुम अपमान कर रहे हो। मेरे भाइयों, ये तमाम चीजें नाकाबिल कबूल है, ये बर्दाश्त का लायक रही है। आइए मैं आपको और आगे की तरफ लेकर चलता हूं। क्या बताया? इंसान के अंदर जब डर पैदा हो जाता है तो इंसान किसी से नहीं डरता, वो निडर हो जाता है। और मैंने उदाहरण दी, मैंने मिसाल दी मुस्कान को लाकर मेरे भाइयों। अब आइए आगे की तरफ आपको लेकर चलता हूं। मेरे भाइयों, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते हैं, आइए वो हदीस उठाइए कि हज्जतुल विदा के मौके पर इस हदीस को भी जरा सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट हदीस है। हज्जतुल विदा के मौके पर नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी के ऊपर बैठे हुए, अपनी सवारी के ऊपर बैठे हुए हैं। नबी के सामने एक हदीस के मुताबिक 1 लाख सहाबा मौजूद है। जिस तरह आप लोग मुझे सुन रहे हैं, जिस तरह आप लोग मेरे सामने मौजूद हैं, इसी तरह नबी के सामने 1 लाख सहाबा किराम का मजमा है। और दूसरी रिवायत के मुताबिक, दूसरी सही हदीस के मुताबिक नबी के सामने 1,25,000 सहाबा मौजूद है। और अल्लाह के नबी सबसे पहले उन लोगों से फरमा रहे हैं, ऐ मेरे उम्मत के लोगों, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मुसलमानों, अला तस्माऊन, क्या तुम लोग मुझे सुन रहे हो? हदीस को जरा सुनिए। नबी फरमाते हैं, अला तस्माऊन, ऐ लोगों, क्या तुम लोग मुझे सुन रहे हो? उसके बाद अल्लाह के नबी ने 1 मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा बयान फरमाया, ऐ लोगो, ऐ मेरे साहबा, अला लअल्लकुम ला तरौनी बादामिकुम हादा, अला लअल्लकुम ला तरौनी बादामिकुम हादा, अला लअल्लकुम ला तरौनी बादामिकुम हादा। यानी अल्लाह के नबी 3 मर्तबा अपने सहाबा से बयान फरमा रहे हैं, ऐ मेरे सहाबा, अला लअल्लकुम ला तरौनी बादामिकुम हादा, हो सकता है कि आइंदा साल तुम लोग मुझसे मुलाकात ना कर सको, हो सकता है कि आइंदा साल तुम लोग मुझसे मिल ना सको, मुझसे मीट ना कर सको, और मैं भी तुम लोगों से मिल ना सकूं। 3 मर्तबा नबी ने फरमाया,
फिर देखिए सब से पीछे में 1 लाख सहाबा का मजमा है। अगर लाउड स्पीकर हटा दिया जाए, मेरे सामने से मैक हटा दिया जाए, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं, मेरे अंदर इतनी कुव्वत नहीं कि मैं यहाँ से आपकी कानों तक मेरी बातों को पहुँचा दूँ। लेकिन मेरे भाइयों, नबी बगैर लाउड स्पीकर के, बगैर माइक के 1 लाख सहाबा के सामने बयान फरमा रहे हैं। और सबसे पीछे में, सबसे पीछे सफ में जो आदमी है, उनमें से एक आदमी खड़ा हो जाता है, एक सहाबा खड़े हो जाते हैं। और खड़े होने के बाद नबी से फरमाते हैं, ए रसूलुल, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, आप हमें किस चीज़ का हुक्म देते हैं? आप हमें किस चीज़ की वसीयत करना चाहते हैं? आप हमें क्या मैसेज देना और क्या संदेशा देना चाहते हैं? जरा सुनिए। अल्लाह के नबी सबसे पहले उस मौके पर, सबसे पहले नबी ने अपनी उम्मत के लोगों को, मुसलमानों को जो सबसे पहले वसीयत की, जो सबसे पहली चीज़ का हुक्म और जो सबसे पहली चीज़ का संदेशा दिया, वो चीज़ क्या थी? वो चीज़ ये थी, इत्तकुल्लाह रब्बकुम, ऐ मेरे उम्मत के लोगों, ऐ मुसलमानों, तुम अपने अंदर तुम्हारे रब का डर पैदा कर लेना। इत्तकुल्लाह रब्बकुम, तुम अपने रब से डरते रहा करना, तुम अपने खुदा से, अपने अल्लाह से तुम डरते रहा करना। यानी नबी अकरम हज्जतुल विदा के उस मौके पर अगर सबसे पहले अपने उम्मत को किसी चीज़ का हुक्म दे रहे हैं, किसी चीज़ की तालीम दे रहे हैं, तो वो चीज़ यही है कि लोगों, तुम अपने अंदर अपने रब का, अपने मालिक का, अपने खालिक का डर तुम अपने अंदर पैदा कर लेना, अपने अंदर डर पैदा कर लेना। इसी चीज़ की तालीम दे रहे हैं। और आगे आइए, और आगे आइए, एक चीज़, इस चीज़ का भी इजाफा करके चला जाता हूं आप लोगों के सामने। एक इंसान 2 तरह से गुनाह करते हैं। एक इंसान 2 तरह से गुनाह करते हैं, मैंने 2 प्रकार से गुनाह करते हैं। एक होता है ज़ाहिरी तौर पर गुनाह करना और एक होता है बातिनी तौर पर गुनाह करना। हदीस को सुनिए, जिंदगी भर काम आएगा आपको। फिर से सुनिए, एक होता है ज़ाहिरी तौर पर गुनाह करना और एक होता है बातिनी तौर पर गुनाह करना। ज़ाहिरी तौर पर गुनाह करना और बातिनी तौर पर गुनाह करना मतलब, उसकी एक एक मिसाल दे देता हूँ। उसकी एक एक मिसाल ये है, एक आदमी है माह रमज़ान में, हमारे सामने इसके बाद जो है अप्रैल से रोज़ा शुरू है ना, इंशाअल्लाह हम और आप 300 रोज़ा रखेंगे कि नहीं रखेंगे? बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो एक आदमी, देखिए, माह रमज़ान में बिला उज़्र अगर किसी ने रोज़ा नहीं रखा, बिला उज़्र, ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है मेरे भाइयों, क्योंकि रोज़ा ये फ़र्ज है। तो माह रमज़ान में एक आदमी, मुर्शिदाबाद में अक्सर मैं आता रहता हूँ, माह रमज़ान में भी मैं आता रहता हूँ। मुर्शिदाबाद में बहुत सारे लोग रोज़ा नहीं रखते हैं। मुर्शिदाबाद के अंदर बहुत सारे लोग, खास करके नौजवान जो होते हैं, रोज़ा नहीं रखते हैं। और दूसरी बात, मुर्शिदाबाद के लोग हराम खोर होते हैं, बड़ा हराम खोर। गाली नहीं दे रहा हूँ, आप ये मत समझिएगा कि मैं आपको गाली दे रहा हूँ। हराम खोर का माना होता है हराम खाने वाला, गाली नहीं है। हराम खोर का माना होता है कि हराम खाने वाला। तो मुर्शिदाबाद के जो नौजवान लोग होते हैं ना, ये बीड़ी और सिगरेट पीने में बहुत आगे रहते हैं, पेशो पेश रहते हैं। उसको तो बीड़ी चाहिए। ऐसा ऐसा सवाल आता है कि मौलाना साहब, अगर माह रमज़ान में अगर बीड़ी पी लूँ क्या रोज़ा टूटेगा? ये भी सवाल आ जाता है। बीड़ी पीना चाहिए उनको। तो मैं उसकी मिसाल दे रहा हूँ कि एक होता है ज़ाहिरी तौर पर गुनाह करना, एक होता है बातिनी तौर पर गुनाह करना। माह रमज़ान में रास्ते से जा रहे हैं, एक चाय की दुकान है। अब चाय की दुकानों में बैठकर एक आदमी बीड़ी पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, चाय पी रहा है। अब आप वहाँ पर उससे बोले, ऐ कम बखत, बांग्ला में बोले, ऐ ढमना, रोजा दिन है बीड़ी खजी तो लज्जा गणे ना। बोलिए उसको कि माह रमज़ान में बीड़ी पीते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जाओ नदी में चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। तो क्या जवाब देगा आपको पता है? जवाब आएगा, जब अल्लाह से नहीं डरना तो लोगों से क्या डरना। जवाब आएगा, जब अल्लाह से नहीं डरना तो लोगों से क्या डरना। इसलिए मैं सबके सामने बीड़ी पी रहा हूं। एक होता है ये गुनाह करना और दूसरा होता है पोशीदा तौर पर गुनाह करना। इसकी भी एक मिसाल सुनते जाइए। इसकी एक मिसाल ये है कि आपके गांव में, आपके समाज में एक बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा अच्छा आदमी है, 5 टाइम की नमाज पढ़ता है, माह रमज़ान में रोज़ा रखता है, जुब्बा उब्बा लगा कर चलता है, गांव का सरदार है, गांव का मॉडल है, वो सब ठीक ठाक करता है। लेकिन
वो सिगरेट पीता है, किसी को पता ही नहीं है। वो सिगरेट भी पीता है, बीड़ी भी पीता है, किसी को पता नहीं है। क्यों? मड़ल साहब सोचते हैं हाय अल्लाह मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, सब ठीक है, गांव वालों की नज़र में मेरी वैल्यू है, मेरी इज्जत है, मेरा मकाम है, मेरा मर्तबा है। अगर मैं गांव वालों के सामने अगर बीड़ी पीऊंगा तो लोग समझ जाएंगे। तो हाजी साहब और वो मड़ल साहब करते क्या है, लेटरिंग में जाकर बीड़ी पीते हैं। अनेक लोग ऐसे बीड़ी ना खेले और हागा हो बना पाते पैखाना दीजिए, ये आदत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो ये होता है पोशीदा तौर पर गुनाह करना, लोगों की नजर से आड़ होकर गुनाह करना। ये कितना खतरनाक है। हदीस सुनते जाइए, फिर इंशाल्लाह मैं आपको और समझा रहा हूँ। हदीस सुनते जाइए, फिर बताऊंगा कि मैंने इस हदीस को मैंने आपके सामने क्यों पढ़ी। ये हदीस इब्न माजा की हदीस है। रावी हदीस हजरत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हजरत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, ऐ लोगों, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, कल कयामत के रोज मैदान महशर में यानी डे ऑफ जजमेंट को यानी पलड़े के दिन, हिसाब व किताब के दिन, यानी जिस दिन तमाम के तमाम लोगों का हिसाब व किताब होगा। अगर आप अच्छे काम किए होंगे तो उसका भी बदला आपको उस दिन मिलेगा, अगर आप बुरा काम करेंगे तो उसका भी बदला आपको मिलेगा। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, इब्ने माजा की सही हदीस है, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैहि इस हदीस को सही करार देते हैं। रावी हदीस यानी हदीस के बयान करने वाले, हदीस को बोलने वाले, रिवायत करने वाले हजरत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कल कयामत के रोज मेरी उम्मतों में से कुछ लोग ऐसे आएंगे जिनके पास सिर्फ नेकियां ही नेकियां होंगी, जिनके पास बहुत सारी नेकियां होंगी। हदीस का अल्फाज है, उनके पास तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां होंगी। लेकिन अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि कल कयामत के रोज उनकी तमाम के तमाम नेकियां बर्बाद कर दी जाए।